So this will be done in the month of mid-March or April. Basically, we are waiting for the UP elections to get over. And another thing that I work on is the health sector. As sir had just mentioned that he's from the health sector. So what I basically we are doing we are also collecting some data which gives us information as to if a small village is near, suppose say Yamuna River, if they're using that water a lot, what is the effect on people's lungs, people's breath, or maybe what is the potential of cancer patients in that particular area. So it's basically like a study. So all these efforts we are trying to do step by step with the power of people around me. If you tell me today that, Kavita, this is the area, why don't you just... For the social cause. And we are also very happy to know that you have given up your glamour world to become a social activist and contributing idea generation, idea dissemination, and idea sharing. I would request Shri Manoj Kumar Saxena ji, Regional Director, National Productivity Council, to come and address the audience, because Delhi Productivity Council, National Productivity Council, they are like big bro, small bro. We go hand in hand with this common theme, common objectives. If you look at what is the problem in waste management, the problem is huge. Today, we generate 62 million tons of waste every year. We are the third largest generator of waste in the world after US and China. And what do we do for waste management? I am talking about urban waste management. You have agriculture waste, you have waste from bagasse. We have little success in agriculture waste. We generate around 540 million tons of agriculture waste. We started with biomass projects. A lot of biomass projects were funded by our organization also. We have an inauguration for the new building, as I mentioned earlier. So I would request our chief guest and the dignitaries to proceed there. But before that, I would like to inform you all, as I have been told by our president, Sri Sudarshan Sharin ji, that facilities in these premises, and he is going to support this cause. Thank you. Thank you, Popli sir. And I request everybody to move to the new building for the inauguration ceremony, please. Thank you. Congratulations, Kumar साहब। ये काम बहुत बधाई हो जी, बहुत अच्छा। बधाई के बाद सर वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन भारत में अभी भी इसको आगे की तरफ नहीं देखा जा रहा है। लोग इसके तरफ सर करना नहीं चाह रहे हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जो है उतना जागरूकता नहीं है लोगों में। जागरूकता तो आ जाएगी अब, क्योंकि उसको स्वच्छ भारत अभियान के साथ जोड़ दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इसकी नोडल एजेंसी है। उसने गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं इसके बारे में। और मेरे को लगता है, और प्रधानमंत्री ने जो अनाउंसमेंट किया था 15 अगस्त को 2014 में कि 2019 तक हम काफ़ी इसके अंदर आगे प्रगति कर लेंगे। तो मेरे को लगता है टास्क बहुत बड़ा है, टास्क छोटा नहीं है, और हर एक का कोऑपरेशन इसके अंदर ज़रूरी है। और लार्ज स्केल पे म्यूनिसिपैलिटीज़ को सबको इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़ेगा।
जिससे कि सरकार की किस तरीके की प्लानिंग है सर, जैसे लोकल बॉडी को किस तरीके से उसको प्रोत्साहित करेगी कि वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल किया जा सके? देखिए, एक तो उनको सेग्रीगेशन वेस्ट का बहुत ज़रूरी है, दूसरा नई टेक्नोलॉजी जो ला रहे हैं वो इंसिनरेशन की, उसके अंदर ये भी है कि आप अगर पूरा सेग्रीगेशन नहीं भी है तब भी वो पूरी बर्निंग उसके अंदर हो जाएगी। तो इसका एक टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन भी आएगा। एक उसके अंदर ये है कि आपको इनको प्रॉपर्ली फाइनेंस भी करना पड़ेगा, इंसेंटिव भी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, जिससे कि ये चीज़ कंप्लीट हो सके, क्योंकि हमारी ये प्रॉब्लम तो बढ़ती जाएगी। जब अगर 2030 के अंदर हमारा जो वेस्ट है वो 1.5 गुना 2.5 गुना हो जाएगा और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, हमारा जीडीपी भी बढ़ रहा है, तो वेस्ट भी बढ़ेगा। अभी तो ये है कि इंडिया के अंदर वेस्ट पर कैपिटा वेस्ट जो है प्रोडक्शन वो काफ़ी लो है। वी आर प्रोड्यूसिंग 300 to 900 grams of waste, but in developed countries the waste production is much higher. अभी सर भारत में किस किस जगह में जो रिसाइकिल किया जा रहा है, किस किस क्षेत्र में? देखिए, अभी जहाँ पे जो वेस्ट के जो प्लांट लगे हैं ट्रीटमेंट के, 2 तो दिल्ली में लगे हुए हैं, गाजीपुर के अंदर है, ओखला के अंदर, एक जबलपुर में है, एक शायद पुणे के अंदर लगा हुआ है। बाकी कुछ प्लांट्स जो शुरू पहले लगे थे वो शायद ऑपरेशनल एफिशिएंसी उनकी नहीं आई और वो बंद पड़े हुए हैं। लेकिन अब जो दोबारा से काफ़ी इंडस्ट्रीज़ आगे आई हैं, तो काफ़ी ग्रुप्स आगे आए हैं, आई एम श्योर, और जो टेक्नोलॉजी भी वो लेके आ रहे हैं जर्मनी से, जापान से, आई थिंक दे विल बी मोर सक्सेसफुल। अभी तक जो देखा जा रहा था, जो रिसाइकिल करने का जो खर्च ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से लोग रिसाइकिल करना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तरीके से देखते हैं, या आगे जो आई नई टेक्नोलॉजी है, क्या उससे रिसाइकिल करने का जो कॉस्ट है वो कम हुआ है? देखो, कॉस्ट, रिसाइकिल का कॉस्ट तो कम नहीं हुआ है, पर ये ज़रूरी है कि आप उसको, अगर सेग्रीगेशन जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर सेग्रीगेशन हाउस होल्ड के ऊपर ही हो जाता है, जो रिसाइक्लेबल वेस्ट है उसके लिए अलग बिन रहता है और जो दूसरा जो कंपोस्ट वाला वेस्ट है वो दूसरे में जाता है। तो ये चीज़ जो है ये इंडिया के अंदर लाने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से छोटे एरियाज़ के अंदर, म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंदर ये शुरू किया जाए और लोगों को भी ज़रूर, इन्होंने शुरू किया था कि ग्रीन बिन्स दिए थे, रेड बिन्स दिए थे, लेकिन वो आगे सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो जब तक जनरल अवेयरनेस नहीं आएगी, जिस तरह से डीपीसी ने किया है, इस तरह से ज़्यादा जब तक प्रोग्राम्स नहीं होंगे और उसकी अवेयरनेस आएगी, स्टूडेंट्स के अंदर अवेयरनेस आएगी, तब जाके ये चीज़ होगी। इतनी आसान नहीं है। कुछ बात चल रहा है जैसे म्यूनिसिपैलिटी के जो वेस्ट मटेरियल है उससे सड़क बनाने का, तो इसमें सर क्या कुछ सरकार आगे बढ़ी है? क्या इस पर फैसला लिया जा चुका है कि हाँ, जो सड़कें हैं वो म्यूनिसिपैलिटी के जो रॉ मटेरियल है उससे बनेगी? जैसे बात करते हैं, जैसे NH24 जो अभी चौड़ीकरण की बात हो रही है, हाँ जी, उसमें भी कुछ समझौता वगैरह हुआ है? अब देखिए, ये सब चीज़ें कितनी सक्सेसफुल होंगी मैं नहीं कह सकता, मेरे को उसके बारे में तो पर्सनली आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑन दिस। हाँ, तो वो एक बात अलग है, लेकिन हाँ सर क्या इस तरह के वेस्ट प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल सड़क में किया जा सकता है, या इस तरह का कुछ प्लान? देखो, डिपेंड करता है कितने स्ट्रेंथ आप लेके आते हो। वेस्ट का रेफ्यूज़ डिराइव्ड फ्यूल जो है वो तो फ्यूल बनाते हैं हम, अब उसको आप कितना स्ट्रेंथनिंग कर पाते हैं, टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कहीं पे सक्सेसफुली ये हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है ये कहीं पे। अगर विदेशों की बात करें सर, वहाँ की तुलना में हाँ जी, भारत में रिसाइकिल का परसेंटेज कितना है और विदेशों में सबसे ज़्यादा? देखिए, वहाँ पे कलेक्शन 98% है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, और ट्रीटमेंट उनका 75 to 80 to 90% है। यहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट 28% है। तो अगर आप इसको देखेंगे कि जो लैंडफिल का 20 साल लगता है, उसकी लाइफ अगर आप पूरे को ट्रीट करके और बर्न कर देते हैं तो उसकी लाइफ 200 साल हो जाती है। सो ये डिफरेंस आएगा, और वो बाहर वेस्ट भी ज़्यादा है, उसका मैनेजमेंट भी बेटर है। यहाँ पे अभी शुरुआत करनी है हमने। तो कुछ नई टेक्नोलॉजी लाने का विचार चल रहा है? नई टेक्नोलॉजीज़ तो एंटरप्रेनर्स लेके आ रहे हैं, जापान से भी लाए हैं, जर्मनी से भी आई है। देखते हैं, अभी तक सक्सेसफुल प्लांट्स एक जबलपुर के अंदर लगाया है उन्होंने, 1-2 प्लांट्स और लगे हैं। अब देखते हैं कि आगे कितने सक्सेसफुल, वो कितना ऑपरेशन रहता है उनका। गाजीपुर में सर, हाँ जी, वहाँ भी रिसाइकिल, गाजीपुर के अंदर सेग्रीगेशन करते हैं वो, से नहीं हो रहा सर। उसमें बात चल रहा था कि
उससे जो है बिजली भी निकालने का, लेकिन सर सफलता नहीं मिल पाई है। गाजीपुर का प्लांट अब काफ़ी रीजनेबली सक्सेसफुल है। उसके अंदर सेग्रीगेशन का इशू था, आई थिंक उन्होंने उसको ओवरटेक वो काफ़ी कंट्रोल किया है। सेग्रीगेशन हो रहा है वहाँ पे, जैसा मेरे को बताया कि वहाँ पे काफ़ी अब सक्सेसफुल है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी के अलावा जो ग्रामीण इलाका या छोटे शहर हैं, हाँ जी, वहाँ पर भी इस तरह की योजना के है। वहाँ पे तो अभी तक रूरल एरियाज़ के लिए तो कुछ नहीं किया है। अभी तो अर्बन एरियाज़ का है। ये जो वेस्ट मैंने बात की थी 62 मिलियन, ये तो अर्बन एरियाज़ का वेस्ट जनरेशन है। रूरल एरियाज़ का वेस्ट का तो आपको प्लास्टिक वेस्ट तो उसको रिसाइकिल कर लेना चाहिए, बाकी उनको कंपोस्ट बनाना चाहिए, डोमेस्टिक गैस बन जाएगी, बायोगैस बनानी चाहिए। और उसके अंदर MNRE ने भी बहुत सारे जो चूल्हे हैं और जो डोमेस्टिक बायोगैस प्लांट्स बहुत सारे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं, सब्सिडी भी दी है। तो मेरे ख्याल से कुछ काम तो इस डायरेक्शन में हो ही रहा है। थैंक यू। सर, DPCC की वेस्ट मटेरियल से लेके कुछ प्लानिंग आप बता रहे थे, वो क्या प्लानिंग है और किस तरह की प्लानिंग है? ऐसा है कि जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान चलाया है, ऐसे ही वेस्ट मैनेजमेंट के लिए सारे देश के अंदर ये नेशनल प्रायोरिटी काउंसिल को आदेश दिया है कि आप सारे देश के अंदर ऐसे जागृति पैदा करो कि लोग जो वेस्ट जो मैनेजमेंट है, जो बहुत सारा जो चीज़ें वेस्ट करके जो फेंक देते हैं इधर उधर, उसकी बजाय वो रीयूज़ हो सके, रिसाइकिल हो सके। तो इसके लिए पहले लोगों को जागृत करने के लिए सारे देश भर में ये प्रोग्राम हो रहे हैं। तो DPC ने भी उसी योजना के अंतर ये आज द्वारका में ये प्रोग्राम किया है और इसमें हम सोच रहे हैं कि ये जागृति लाने से कि देश को बहुत लाभ होगा। इसमें जो अभी तक जो लोग जो इधर फेंक देते थे इधर चीज़ें, जो जैसे प्लास्टिक का है, लोहे की जो वेस्ट है, और जैसे पानी का भी जो ड्रेनेज है, और उसमें भी इतने मिनरल्स होते हैं कई, और वो अगर ठीक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाए तो एक ड्रिंक का भी काम हो जाएगा। और दूसरा ये है कि रीयूज़ करने में वो चीज़ें आगे फ़ायदा भी हो जाएगा। तो ये एक सारे देश के अंदर एक जागृति पैदा करने का अभियान चलाया है। 12 से 18 फरवरी तक के सब जगह ये प्रोग्राम हो रहे हैं। सर, DPCC की तरफ से किस तरीके से लोगों को जागरूक किया जा रहा है ये कि वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करें या सही ढंग से उसको जो कचरे को अलग अलग? हाँ, इसमें हमने तो एक तो ये भी किया है कि ये जो प्लांट जो हैं सारे वर्ल्ड भर में कैसे जो प्लांट जो है ट्रीटमेंट, वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर ये कूड़ा कट के ढेर जो लगे हैं, जैसे आपने दिल्ली में भी देखते हो, तो उस कूड़ा कट जो है वो ही बड़ा रीयूज हो सकता है। उसके लिए कलेक्शन के लिए हम सर्वे करने का भी प्रोग्राम बनाया है कि जैसे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के, और उनको भी हम सर्वे रिपोर्ट देंगे कि भाई इस तरह से ये कहाँ से जो इतने ढेर जो और लगे पड़े हैं गंदगी के, और वो अगर कलेक्ट ठीक तरीके से होकर और वो एक जगह जाए और उसको रिसाइकिल हो, वो फिर वो रीयूज हो, तो वो बजाय के एक लाभ भी सारे कंपनियों को हो सकता है। कॉर्पोरेशन भी उसमें वो काफ़ी लाभ उठा सकती है। तो देश में ये देश के जो लोग हैं वो उतने जागरूक नहीं है कि वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करें। ज़्यादातर लोग जहाँ तहाँ डंप कर देते हैं उसको। इस तरीके से लोगों को किस तरीके से आप लोग जागरूकता लाने की कोशिश करें? ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं बड़ी पुरानी बात करता हूँ। पहले लोग जो लोहे की मशीनों पर जो मशीनिंग करते थे तो बहुत सारा बुरादा होता था, उससे बड़ी गंदगी फैलती थी, और वो उल्टा लोगों को उसको ढेर जो बुरादे के ढेर होते हैं वो ट्रकों से खर्चा करके उठाना पड़ता था। अब वो क्योंकि उसका इंतज़ाम हो गया रिसाइकलिंग का, उसमें प्लांट लग गए, तो वो बजाय नुकसान के, वो बर्डन के, वो उनको बड़ा फ़ायदा हो गया उससे जैसे स्क्रैप का वो उसको प्लांटों में रिसाइकिल करने से वो क्या हो गया कि उसका सारा जो लॉस होता था वो प्रॉफिट में बदल गया। लेकिन लोगों को ये आपने ठीक कहा है कि जानकारी नहीं है, तो हम ये जगह जगह अपना लिटरेचर जगह जगह
अपने मैगजीन में, आज भी हमने कई पेपर पेश किए हैं। और यहाँ पर भी बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग आज सेमिनार में आए हैं, उन्होंने जो आइडिया दिया है वो उसका एक रिपोर्ट बनाकर सारे देश में उसको भेजेंगे। सर डीपीसीसी जो है कई एजुकेशन सेक्टर में जुड़ा हुआ है, हाँ। बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए भी आगे आ रहा है। किस किस तरीके से आप लोग बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं? हाँ, हमने दो तरह से डीपीसी को एमबीए के हमने प्रोग्राम भी यहाँ इसी इंस्टीट्यूशन में कराते हैं, लेकिन और स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम जो है अब जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत ये ऐसे जो ट्रेनिंग सेंटर हैं जगह जगह हम खोलने के सोच रहे हैं। अभी हमने आज से ही 16 फरवरी से झंडा बनाने में शुरू कर दिया है। और एक हम यहाँ इसमें द्वारका के अंदर ये सेंटर के अंदर स्किल डेवलपमेंट का और ख़ास तौर डिजिटल डेवलपमेंट जो है और डिजिटल इंडिया का जो नारा है प्रधानमंत्री जी का, उसको साकार करने के लिए हमने यहाँ पर भी प्रोग्राम चालू किए हैं। और उसको आज सर्टिफिकेट दिए हैं जिन लोगों ने वो कोर्स किए हैं 3 महीने के 6 महीने के, उनको आज सर्टिफिकेट दिए हैं, उनको प्रोत्साहन किया है। और हमारे जो चीफ गेस्ट द्वारा जो उनको बहुत बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला है इससे। सर क्या कोई वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल करने का भी छोटे लेवल पे कोई आप लोग प्रोग्राम निकाल रहे हैं? हाँ, नहीं अभी ऐसा नहीं, अब अभी क्योंकि ये सेमिनार किया है इस तरह से यह सारा सर्वे करने से, और ये चाइना के साथ भी हमने बात की है कि चाइना भी ऐसे प्लांट जो है वो उनसे भी हमने इंटरनेशनल गेस्ट को यहाँ इनवाइट किया, ये उनसे पूछने के लिए कि ये जो ड्रेनेज का पानी जो इतना गंदगी फैलाता है और वो कैसे ट्रीटमेंट होगा। उन्होंने ऐसे हज़ारों सेंटर दुनिया में चालू किए हैं, लेकिन वो अब इंडिया में भी करना चाहते हैं। उनको आज हमने इनवाइट किया था और उन्होंने हमें काफ़ी सुझाव दिए हैं। धन्यवाद। Yeah.